السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے وہ ذات جس سے خوشحالی اور صحت و سلامتی طلب کی جاتی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ منافع خور شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ عرفان گجر کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی حالیہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے دیہڑی دار طبقہ پریشان حال ہے اور بچت بھی غریب عوام کے لیے خوشحالی نہ لا سکا۔ پیاز، آلو وغیرہ، ٹماٹر وغیرہ لینے آئے تھے، لیکن ان کی چیزوں کے ریٹ دیکھ کر ہم یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ جو چیز 25 یا 30 روپے کے جی کے حساب سے مل رہی تھی، آج اسی کی قیمت 70 سے 80 روپے کلو ہے۔ لہٰذا میری گورنمنٹ سے التجا ہے کہ مطلب یہ جو مصنوعی مہنگائی پیدا کی گئی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ غریب عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ خواب خرگوش میں مگن ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم بھی ہو گئی ہیں، نہ کوئی کرایوں میں کمی ہوئی ہے اور نہ کوئی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لسٹوں کے مطابق سیالکوٹ میں کوئی بھی چیز نہیں مل رہی اور انتظامیہ جو ہے بالکل خاموش ہے۔ کہیں بھی ابھی ڈی سی سیالکوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہے کسی چیز کو، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، اور مصنوعی مہنگائی کا سیالکوٹ میں ایک طوفان ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، چکن ہے 260 روپے ملنا چاہیے، 350 بلیک مل رہا ہے، کوئی ایکشن کنٹرول چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی اشیاء خوردونوش اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب پیٹرول سستا کیا جاتا ہے تو اس وقت اشیاء خوردونوش اور کرایوں میں کمی کیوں نہیں کی جاتی؟ ضلعی انتظامیہ ان منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے آئے روز اشیاء خوردونوش قیمتوں میں اضافہ ضلعی انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان گجر، سچ نیوز، سیالکوٹ۔ لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، جس سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اجمل خان کی رپورٹ۔ تبدیلی سرکار مہنگائی پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ پیٹرول پیکیج کا جو پیٹرول اتنا سستا ہو گیا ہے، سستا ہونے کے باوجود عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مہنگائی پہلے سے بڑھ چکی ہے، چینی 80 سے 85 روپے کلو چلی گئی ہے، گھی دیکھ لیں جناب 220 تک چلا گیا ہے، اور سبزیاں مہنگی ہیں۔ کوئی انتظامیہ وزٹ نہیں کر رہا، نہ کوئی انتظامیہ کمپلین، چیئرمین کمپلین سر کافی دفعہ اپلیکیشن دے چکے ہیں، وہ بھی کوٹ سلطان شہر کا کسی نے وزٹ نہیں کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے پیٹرول سستا ہونے کے باوجود ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجمل خان دستی، سچ نیوز، کوٹ سلطان لیا۔ شیخو پورہ میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 200 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ عرفان مقبول کی رپورٹ۔ شیخوپورہ میں آٹے کا مصنوعی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 200 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ آٹے کا 20 کلو 10 کلو والا تھیلا بلیک میں فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی میں پسی عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ بعض دکاندار 20 کلو والا تھیلا 1200 روپے اور 10 کلو والا تھیلا 600 روپے میں فروخت کرنے لگے۔ منڈی میں گندم کی قیمت میں اضافے کے باعث فیکٹری مالکان نے آٹے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ گندم خریداری کا ٹارگٹ پورا کرنے کے باوجود آٹے کی فروخت سرکاری ریٹس پر کروانے میں ناکام ہو گئی۔ آٹا جی حکومت نو چاہیے آٹے دا بحران دے بارے کوئی گل کرے۔ آٹا بہت مہنگا ہو گیا، 1200 روپے دا آٹے دا تھیلا ہو گیا۔ انہاں حالاتاں دے اندر ماڑا بندہ 800 روپے دیہڑی ہے، 800 روپے دیہڑی دے اندر ماڑا بندہ آٹا کس طرح خریدے گا؟ وہ 1200 روپے دا 1400 روپے دا کوئی دے رہا، کوئی 1200 روپے دا دے رہا، کوئی 1150 روپے دا دے رہا۔ تے حکومت اگے اپیل ہے کہ برائے مہربانی آٹے دے بحران نو ختم کیتا جاوے۔ آٹا جی بہت مہنگا ہو گیا، مل بھی نہیں رہا، اگر مل رہا ہے تو بلیک میں مل رہا ہے، 1200 تک اس کا ریٹ ہے، وہ بلیک میں دکاندار بیچ رہے ہیں اور کوئی پشانے حال نہیں عوام کا۔ 800 کے بجائے 1200 روپے کلو ملنے لگا۔ بتائیں ہم غریب آدمی کدھر جائیں؟ 700-800 دیہڑی والا طبقہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے؟ کہ دکانوں پہ آپ دیکھ لیں آٹا ہے نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ 1100-1200 روپے کا توڑا دے رہا ہے، جو 10 کلو کا ہے وہ 600-700 روپے کا بھی دے رہے ہیں بلیک میں۔ حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ غفلت کے مرتکب ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو آٹے کی فروخت کو سرکاری نرخ ناموں پر یقینی بنانے کی ہدایت جاری کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ عرفان مقبول، سچ نیوز، شیخوپورہ۔ مظفر گڑھ کی تحصیل سناما میں مقامی شوگر ملز نے سستی چینی کے سٹالز لگا دیے، جہاں عدالتی حکم کے مطابق 70 روپے فی کلو میں چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ منیر حسین کی رپورٹ۔
अदालती अहकामात पर सिनामा में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब होना शुरू हो गई। मकामी शुगर मिल्स की जानिब से सिनामा में स्टॉल लगा दिए गए। घरेलू सार्फिन के लिए चीनी 70 रुपए किलो है और ओपन मार्केट में चीनी 80 से 90 रुपए तक फरोख्त हो रही है। चीनी का स्टॉल शेख शुगर मिल फेयर प्राइस शॉप का हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला अवाम की सहूलत के लिए किया है। शुगर मिल इंतजामिया का कहना है कि जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता उस वक्त चीनी 70 रुपए किलो तक फरोख्त करेंगे। शुगर मिल की तरफ से ये सनामा के अंदर स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त की जा रही है। ये घरेलू सार्फिन के लिए है। शुगर मिल्स की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स पर लोग चीनी खरीद रहे हैं। 70 रुपए किलो चीनी मिलती भी है। आवाम नूं रिलीफ दिओ, इत्थे चीनी लवो, कोई 100 रुपए देना, कोई 90 रुपए देना है। इहदे च हुकूमत दा कोई अमल दखल नहीं है। एक तरफ तो चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि शुगर मिलें हमें चीनी नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमें महंगी पड़ती है। शॉप के पॉइंट खोल के वहाँ पे दे रहे हैं, ना कि आम ओपन मार्केट में करियाने की दुकान पे दे रहे हैं। करियाने वाले को आज भी चीनी महंगी दामों मिल रही है और वो महंगे दामों बेच रहा है। और हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो ऐसा लाया माल तैयार करे कि चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद हो और वो हर जगह हर करियाने की दुकान पे। शहरियों का कहना है कि अदालती अहकामात पर सस्ती चीनी मिलने तो शुरू हो गई, लेकिन अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। आवाम को रिलीफ महंगा पड़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद बहावलनगर की तहसील हारून आबाद में पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, अवाम पेट्रोल के हसूल के लिए रुल गई। हुकूमत की नाकस हिकमत अमली ने अवाम को बहरान का शिकार कर दिया। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। पेट्रोल पंप पर 50 या 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल मिलना नामुमकिन हो गया। महंगाई ने अवाम का कचूमर निकाल रखा है। ऐसे में हुकूमत कोई चीज सस्ती करती है तो जखीरा अंदोज रसद में कमी करके ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर देते हैं। इन हालात में हुकूमत की नाकस हिकमत अमली और हुकूमती रेट बिल्कुल भी नजर नहीं आती। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पेट्रोल का हुसूल ख्वाब बन गया। कंदकोट के शहरियों को 16वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत का सामना है। अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। की हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मंसूआत के कीमतों में कमी तो की गई, लेकिन पेट्रोल मंसूआत के कीमतों में कमी के बाद कंदाकोट में पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल मालिकान ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। पेट्रोल न मिलने पर शहरी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आप देखें इधर लाइनें लगी हुई हैं, सुबह से इधर खड़े हुए हैं। कोई मरीज है, कोई अस्पताल जाने वाला है, लेकिन इधर पेट्रोल नहीं है। तो चंदा सी मथा पेट्रोल मिले ही कोन दो। अरे बुधायो असी गरीब वञो कि ना खुदकशी करने देने पंप वाला न सागे। तंगवानी से आए 50 का लीटर तेल दे रहे, 50 से ज्यादा नहीं दे रहे। अभी हम बाइक हाथ पे लेके जाएं, बच्चे साथ में हैं हमारे साथ। ना इंसाफ ये गवर्नमेंट की ये कोई सोच नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। हम गरीब कहाँ जाएं, किसको कहें, कौन हमारा सुनने वाला है? ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला है। हम किसका दर खटखटाएं? सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। उनका यही कहना था कि हमें मोटरसाइकिल वाले कह रहे हैं कि हमके 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहे और बड़े गाड़ियां वाले कह रहे हैं कि हमको 500 से ज्यादा जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंदाकोट। खानेवाल के इलाके विजयावाला में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तजम्मुल कुरैशी की रिपोर्ट। दूसरे शहरों की तरह विजयावाला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर शहरियों को पेट्रोल की किल्लत का सामना है। विजयावाला चौक जमाल में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल देना बंद कर दिए और जो खुले हुए हैं इनसे कम मिकदार में मिल रहा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करे, पंपा ते भी कंट्रोल करे, पंपा वाले को हिदायत करन। पंप मालिकान का कहना है कि हमें बहुत कम मिकदार में पेट्रोल मिलता है जो शहरियों में पूरा करते हैं। मजबूर होते हैं सारे जो परेशान होते हैं, जो औरतों के साथ होते हैं, 50 का 100 का देना जरूरी होता है। उन्होंने वजीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की तरसील का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ जम्मल कुरैशी, सच न्यूज, विजयावाला। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वाले 3 पंप से सील कर दिए हैं। फयाज अहमद की रिपोर्ट। सच न्यूज की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद बट्टू इंडक्शन हो गए। पेट्रोल मौजूद होने सेल न करने वाले 3 पंप सील कर दिए और जिन पंपों पर पेट्रोल मौजूद ही न था उनको सख्त वार्निंग
कि पेट्रोल मंगवाकर सेल जारी कर रहे हैं, वरना पंप सील कर दिए जाएंगे। इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू ने बताया कि आवाम की मुश्किलात में इजाफा करने वाले, पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा करने वाले किसी रियायत के हकदार नहीं, सख्ती से निपटा जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, टोलमजा। जंगलात को टिम्बर माफिया से बचाने और फराइज की अदायगी के लिए जरूरी वसाइल दस्तियाब न होने के बावजूद मुलाजमीन जिंदगियां दाव पर लगाते हैं। अपने फराइज की तकमील के लिए मुश्किलात झेलने वाले मुलाजमीन के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों, डाकुओं और टिम्बर माफिया से नबर्द आजमा होने वाले महकमा जंगलात के मुलाजमीन जान हथेली पर रखकर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये मुलाजमीन बगैर असला और सहूलियात के दरख्तों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। चोरों को पकड़ने के लिए सड़क किनारे फसलों में छुपते हैं तो कभी बगैर रोशनी के पैदल जंगल में घूमते हैं। अपने फराइज की तकमील के लिए मुश्किलात झेलने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों और सहूलियात की कमी पर शिकवा कुना है। हमें जो रात को रेड करते वक्त ये जो हमें मसाइल पैदा होते हैं, हमारे पास ना तो कोई असला है, जबकि चोरों के पास असलहा होते हैं, और यहाँ पे रात को जंगल में मतलब मुख्तलिफ जानवर होते हैं, तो हमारा इनके साथ सामना होता है। तो हमें जो है ना हुकूमत से अपील है कि कोई असला वगैरह दिया जाए। महकमा जंगलात के मुलाजमीन की कमी, रिस्क अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस का ना होना और सख्त कवानीन की कमी इन मुश्किलात में मजीद इजाफे का सबब बनती है। इस वक्त हम जंगल में मौजूद हैं। ये बेसिकली रात का टाइम है, क्योंकि जो मतलब टिम्बर माफिया है वो तकरीबन रात को कार्रवाई करते हैं। जो हमारे कीमती दरख्त है जिनमें कीकर, शीशम, पॉपुलर, सफेदा जो स्टैंडर्ड दरख्तों में भी आते हैं, वो रात को इनको मतलब काटते हैं। पूरी उनका नेटवर्क है एक यहाँ, लेकिन हम भी अपनी रैकी कंप्लीट करके मेरी पूरी टीम, तो हम उनको बगैर किसी, क्योंकि बेल्ट फोर्स हम हैं लेकिन हमें आर्म नहीं किया गया, हम अपनी जान दाव पे लगाकर उनको पकड़ते हैं। मुतअद्दिद बार मुलाजमीन डाकुओं की गोलियों और तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जिसके लिए बाकायदा क्विक रिस्पांस फोर्स का क्याम नागुज़ीर है। खतरात के बावजूद दरख्तों की हिफाजत पर मामूर ये एहलकार किसी कौमी हीरो से कम नहीं। इनके मसाइल के हल और दरख्तों की हिफाजत के लिए हुकूमत को संजीदा इकदाम उठाने होंगे। लिया में चौक-आज़म शहर की पहचान मिनी मीनार यादगार खस्ताहाली का शिकार है। मीनार की बुनियादें टूट फूट चुकी हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा रुनुमा हो सकता है। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। तारीखी इमारत और किसी भी शहर की पहचान समझे जाने वाले विरसा की हिफाजत जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वही जिंदा कौमों का शेवा भी। लिया के नवा इलाका चौक-आज़म जहाँ से मुल्क भर की ट्रैफिक का गुजर रहता है, चौक-आज़म शहर के वस्त में वाक़े चौक के मरकज में मीनार पाकिस्तान के तर्ज पर बनाए जाने वाले मीनार को चौक-आज़म की पहचान कहा जाता है। वहीं ये मीनार चौक-आज़म की इंफरादियत का बायस भी है। चौक-आज़म की पहचान कहलाए जाने वाले मीनार को 90 की दहाई में चौक-आज़म म्युनिसिपल कमेटी के पहले चेयरमैन ने मीनार पाकिस्तान के तर्ज पर तामीर कराया। इसी मीनार को मिनी मीनार पाकिस्तान भी कहा जाता है। 30 साल गुजर जाने के बावजूद म्युनिसिपल कमेटी की गफलत के सबब मीनार यादगार की तज़ीन और आरइश और मुरम्मत न कराई जा सकी। मीनार की बुनियादें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। रोजाना की बुनियाद पर दर्जों छोटी बड़ी गाड़ियां मीनार के करीब से गुजरती हैं। मीनार खस्ता हाली के बायस गिरकर किसी भी बड़े साने का सबब बन सकता है। चौक-आज़म की पहचान इस मीनार की तज़ीन और आरइश और मुरम्मत से जहाँ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, वहीं तारीखी इमारत की इस यादगार को महफूज भी बनाया जा सकता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। रहीमगर खान के इलाके चाचड़ा शरीफ में दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया। दरियाई कटाव से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और 4000 से ज्यादा घर दरियापुर्द हो गए, मगर मुतालिका महकमे और जिले इंतजामिया अभी तक चैन की नींद सो रहे हैं। हसन रहमानी की रिपोर्ट। दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ बस्ती कुड्डन की हजारों एकड़ पर तैयार फसल और घर दरियाबुर्द हो गए। एक साल से जारी दरियाई कटाव हंसते बसते घरों को बहा कर ले गया और अच्छे अच्छे जमींदार अर्श से फर्श पर आ गए, लेकिन जिला इंतजामिया खामोश। सारी काफी बस्ती थे दरिया ज्यादा चा गई है, लेकिन इतना सारा जितना बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल दरिया चा गए। इतना कोई तालीम का कोई बंदोबस्त क्या नहीं, खुले आसमान तले बच्चे गुजरे पे। काफी असा क्या सारे जितना पड़ोसी था हमसायन सब खुले आसमान तले गुजरे पे। दरियाई कटाव ने किसानों के साल भर की मेहनत के बाद तैयार फसल को बड़े पैमाने पर अपनी लपेट में ले लिया। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद किसी हुकूमती नुमाइंदे को होश न आया। दरिया सिंध कटाव इतनी थे तकरीबन इथों के 3 किलोमीटर दूर तू 500 एकड़ जरा अगू ते सो रहा है। ही टाइम तक कितनी वस्तियां या कितनी स्कूल या कितनी मुतासिर बाल दी पढ़ी है या जो कुछ थे वो गवर्नमेंट को पूरा पूरा इतना के विजिट करें, लेकिन हर चीज का इल्म है पिया। इतना के गवर्नमेंट का कोई बंदा मौजूद करने जो कोई सिर्फ सहारा चले इंसान को जो भाई तो सरकार गिनो। अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होता देखकर मुतासरा
नहायत ही अफसरदा हैं और सोच रहे हैं कि आप अपने घर वालों का पेट कैसे पालें। ये अफराद खुले आसमान के नीचे बैठे अवामी नुमाइंदों का या किसी मसीहा के मुंतजिर हैं ताकि वो फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। सिंध के इलाके खैरपुर के बासी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साफ पानी की शदीद किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अली गौहर की रिपोर्ट। खैरपुर में पानी की शिद्दत किल्लत पैदा हो गई। लोग दूर दराजा से साफ पानी भरने पर मजबूर हो गए, जबकि खैरपुर के लोगों का कहना है कि पब्लिक हेल्थ की जानिब से हफ्ते में 3 दिन के बाद जो पानी आता है वो पानी पीने के काबिल नहीं। पब्लिक हेल्थ की जानिब से जो लोग पाइपलाइन बिछाई गई है वो पाइपलाइन जगह जगह से टूटकर गटरों से मिल गई है, जिसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। जबकि लोगों का कहना था कि हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमें साफ पानी फराहम किया जाए। पानी ओस्तेगाई में नहीं है, हम फरामत कर रहे हैं तो हमको पानी चाहिए। हम पीने के लिए पानी कुछ भी नहीं है इधर, हम बहुत मर रहे हैं पानी के बगैर। 3 दिन हो गए यहाँ पे पानी है ही नहीं। सिर्फ ये वहाँ हमारी हुकूमत को अपील है कि हमारे को पानी चाहिए बस। कैमरामैन मोहम्मद अली जानी के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज, खैरपुर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गटरों के ढक्कन गायब होने की वजह से हादसात मामूल बन गए, जबकि मुतादिद बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई है। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद के मोहल्ला 5 मरला स्कीम का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है। मेन गलियों के सीवरेज लेने के होल के ढक्कन गायब हैं। ढक्कन ना होने के सबब सीवरेज के गंदे पानी के ताफुन से इलाका मकीन परेशान है। गलियों के दरमियान में खुले होल हादसात को दावत दे रहे हैं। इलाका मकीनों को गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो 5 मरला स्कीम को आने वाली 2 मेन गलियां हैं, इनके तमाम जो मेन होल हैं उनके ऊपर एक के ऊपर भी कोई मेन ढक्कन नहीं है। यहाँ से आने जाने वाले सब लोग जो परेशान हैं और हमारे बच्चों को आए दिन मसले मसाइल यहाँ पेश होते हैं। कोई बड़ा हादसा होने का इम्कान है, लिहाजा हमने बार बार जो है इतला दी है म्यूनसिपल कमेटी वालों को इसको मेन होल ढक्कन जो है वो फिलफौर लगवाए जाएं, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। गंदी बदबू से तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। 5 मरला स्कीम में जितने गटर खुले खड़े डूब गलियां दे विच के वड्डे वड्डे हॉल है, नहीं तो कोई है कि ढक्कन कह नहीं। म्यूनसिपल कमेटियां को असा इतनी दफा के कि कोई ढक्कन दियो साढ़े बाल विच ढांदन ते बदबू फैल दी, उन्हें साड़ी गाल कह नहीं सुनी। हों तक तो इतने परेशान थे खड़े हैं कि है कि ढक्कन ही देते कह नहीं। रात को कोई ना कोई हादसा जरूर थी दे। मुतद्दद हादसा रूनुमा हो चुके हैं। म्यूनसिपल कमेटी सरवर शहीद को मुतद्दद बार आगाह किया गया, मगर म्यूनसिपल कमेटी सरवर शहीद ने कोई नोटिस ना लिया। इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजर लगती है। मोहल्ला 5 मरला स्कीम के बासियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू से मुतालबा किया है कि 5 मरला स्कीम के जो सीवरेज की लाइनें हैं इनके ऊपर जो ढक्कन जो है वो गायब हैं, ये ढक्कन जो है वो लगाए जाएं ताकि मुख्तलिफ हादसात से जो है वो बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। कबीरवाला के नवा इलाका बस्ती लालवाला में बिजली की लटकती हाई वोल्टेज तारें इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गईं। अब्दुल मजीद भाटी की रिपोर्ट। कबीरवाला के नवाही इलाका बस्ती लालवाला में पिछले 1 साल से बिजली की हाई वोल्टेज तारें ट्रांसफार्मर समेत मकान की दीवार से आ लगी हैं। कई दफा गए हैं, वापडा ने मिन्नतां कीतियां ने जाके, एसडीओ ने भी आख्या है जाके भी सार साडा मसला है तो सानू हल करो। इत्थे कई जानवर चरे मर गए ने। और शॉर्ट सर्किट के बायस बिजली की आंख मचोली रोजाना का मामूल बन गया है। गिरे हुए मेन पोल से लुढ़कती हुई हाई वोल्टेज तारें मकान की छत से होते हुए दरख्तों से टकराती हुई जमीन के इतने नजदीक आ गई हैं कि करीब से गुजरने वाले बच्चों के हाथ आसानी से इन तारों तक पहुंच जाते हैं और कई दफा जानवर करंट लगने से हलाक हो चुके हैं। 1.5-2 साल हो गए ते निक्के निक्के साडे बच्चे नु तो पक्खू बांधे ताई आग बलदी तारा सड़दी 1.5 साल हो गए जिकी हुई तारा शेर निवा के तले टपना पड़ता है। हमारे तकरीबन 1.5 साल से तारें नीचे गिरी हुई हैं, तो ना हमारी लेबर इधर काम कर रही है, जिसकी वजह से हमें तकरीबन 1.5 साल का ठेका हम जेब से दे चुके हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है और वापडा वाले से भी दरखास्त की, अभी तक हमारा कोई हल नहीं हुआ है। अहले इलाका ने वापडा के मजाज अफीसरान से जल्द अज जल्द तारे बदलने की अपील की है ताकि इस अजाब से निजात मिल सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला।
सादिकाबाद में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बेट 24 की हदूद में माची गोट चौक से ऑपरेशन का आगाज किया गया। मोटरवे की हदूद में कायम फल और सब्जी के स्टॉल्स, मुर्गी फरोशों और दुकानदारों की जानिब से कायम शेड्स को तोड़ दिया गया। इस मौका पर डीएसपी मोटरवे फरासत अली का कहना था कि मोटरवे की हदूद में दुकानदारों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए थे। आए रोज हादसात होने लगे थे। मोटरवे पुलिस इन तमाम तजावुजात को खत्म करेगी जो उसकी हदूद में कायम है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राजनपुर के इलाके रुझान में एहसास प्रोग्राम सेंटर के बाहर शहरियों का हुजूम लग गया। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। रुझान में शहरियों ने समाजी फासला और हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी। तहसील इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे की गफलत के पास इंसानी जिंदगी खतरे में पड़ गई। एहसास कफालत प्रोग्राम में समाजी दूरी का नफाज न होने पर मोहल्ले वबा फैलने का खदशा। इमदादी रकूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल के बाहर मर्दों का हजूम। मर्दों की कसीर तादाद एक साथ जमा होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने लगा। इमदादी रकूम सेंटर के बाहर SOP के खिलाफ वर्जी, समाजी फासला और ना ही मास्क के इस्तेमाल। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये एहसास प्रोग्राम का सेंटर है, लोगों को बड़ा हजूम है, रश है, ना मास्क पहनते हैं ना कोई चीज़। हम हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं कि इनके बारे में कोई चीज़ सोचे। और कोरोना का बड़ा ही खतरनाक बीमारी है, पहले भी फैला हुआ है, मूजी मर्ज है, इससे बचना चाहिए और एहतियात करना चाहिए। ये हुकूमत को चाहिए इनके साथ इनकी सख्ती करें इनके ऊपर। इनको बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। गरीब आदमी से कोरोना लग गया तो वो कहाँ पे जाएगा। हमेशा के लिए कुछ ऐसे आदमी होने चाहिए कि जो आवाम का भी ख्याल रखें और अंदर वालों का कानून का खिलाफ रखें। और यही मामलात के बारे में हमेशा लोगों को धक्के देकर बाहर फैलाया जाता है कि तुम बाहर निकल जाओ। जिनके पास वैसी रिकॉर्ड नहीं है वो कहते हैं कि बाहर निकल जाओ। वो तस्दीक नामा भी दिखाने के बावजूद भी उनको धक्के देकर निकाला जाता है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि तहसील इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे की गफलत के खिलाफ फिलफौर नोटिस लिया जाए ताकि इस कोरोना जैसी वबा से बचा जा सके। कैमरामैन मलिक उज़ैर फैल अहमद के साथ साची न्यूज रुझान। लॉकडाउन के दोबारा नफाज पर मुजफ्फराबाद के पब्लिक सर्विस ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। नदीम शाह की रिपोर्ट। सख्त तरीन लॉकडाउन के दोबारा नफाज पर पब्लिक सर्विस ड्राइवर सरापाए एहतजाज हैं। ड्राइवर्स के मुताबिक तमाम बड़ी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, जबकि छोटी गाड़ियों पर आमदोरफ्त जारी है जो SOP की सख्त खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त से कोरोना वायरस फैलने के शदीद खतरात भी लाहक हैं। हुकूमत व मुतलका इदारे छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी लगाएं। बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी लगाकर SOP की खिलाफ वर्जी करते हुए छोटी गाड़ियों पर आमदोरफ्त जारी रखना हुकूमती SOP के मुनाफी है। मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये बात कहता हूँ कि ये देख रहे हैं सब ड्राइवर हजरात, हम पहले भी 3-4 महीने खड़े रहे हैं, आज भी जो है हफ्ते का लॉकडाउन लगे हम खड़े हैं, मगर चौकी से उसी तरह मुसलसल छोटी गाड़ी जा रही है, कैरी डब्बा और आल्टो जा रही है सवारियाँ बिठाते हुए मुजफ्फराबाद। अब हमें बताएं कि हमारा क्या कसूर है। IAS को खड़ा किया जा रहा है और छोटियां गाड़ियां चला रहे हैं। ड्राइवर्स के वफ्द ने पुलिस के ओहदेदारान से भी मुलाकात करके मसाइल की निशानदही की, जिस पर पुलिस ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। जबकि ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि इस लॉकडाउन में हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर या हल्का मिनिस्टर की तरफ से इन्हें कोई इमदादी पैकेज नहीं दिया गया, जिससे इनके घर में फाकों की नौबत है। सर जी उधार लेके खा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मेरा और कोई बिजनेस है नहीं है, यही गाड़ी है, यही चला रहा हूँ। 2.5 महीने से 3 महीने से उधार लेके खा रहा हूँ। टैक्सी गाड़ियाँ हैं वो प्राइवेट गाड़ियाँ सवारियों पे चलती हैं, हम घर खड़े हैं। ड्राइवर्स ने पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज मुअख्खर करते हुए 2 दिन की डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर हमारे जायज मुतालबात न माने गए तो हम अपनी गाड़ियों समेत रोड पर आकर एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। कैमरामैन सिकंदर अली शाह के साथ सैयद नदीम शाह, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। नाम नहाद जमहूरी भारत सफारती आदाब भूल गया। शिद्दत पसंद मोदी के सिक्योरिटी इदारे बेलगाम हो गए। सफारती आदाब की धज्जियां बखेरते हुए पाकिस्तानी सफारत खाने का मुहासरा किया गया। भारतीय सिक्योरिटी एहलकार असलहे से लेस थे, ऐसा कहना है जराए का, जबकि पाकिस्तानी सफारती एहलकारों को हरासा भी किया जा रहा है। सफारती उसूलों को नजरअंदाज करते हुए रिहाइश गाहों तक हरासा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, सफारतकारों को हरासा किया जाने लगा? जी देखिए, बिल्कुल नाम नेहाद जमहूरी भारत जो है वो सफारती आदाब भी भूल चुका है और शिद्दत पसंद मोदी के सिक्योरिटी इदारे इस वक्त बेलगाम है। भारत में सफारती आदाब की धज्जियां बखेरते हुए पाकिस्तानी सफारत खाने का आज सुबह
11 बजे मुहासरा किया गया। दर्जनों की तादाद में जो मुख्तलिफ भारतीय सिक्योरिटी इदारों के एहलकार थे वो असले के साथ लेस होकर पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है भारत में उसके सामने पहुंच गए और इस मौके पर भारतीय जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने पाकिस्तानी सफारती एहलकारों को भी हरासा किया। सच न्यूज ने इस हवाले से एक्सक्लूसिव और जो खसूसी फुटेज हासिल की है उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में भारतीय जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जो असले से लेस है किस अंदाज में वो सफारती आदाब की धज्जियां बिखेरते हुए पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने इस मौजूद थे और उसके साथ साथ न सिर्फ मौजूद थे बल्कि वहां से कुछ सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो पाकिस्तानी सफारतखाने के जो मरकजी गेट है जिसे एंट्री गेट कहा जाता है वहां तक आए और वहां पे भी उन्होंने कुछ इस तरह के अग्रेशन देने की कोशिश की और उसके साथ साथ ऐसे जुमले कसे कि जिसके जरिए वो हरासा करने की कोशिश कर रहे थे। गुज़िश्ता 2-3 रोज से ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये होता था कि जब सफारती एहलकार घरों को जा रहे होते थे तो उनको फॉलो किया जाता था या उनको हरासा किया जाता था, लेकिन अब तो जो ये भोंडेपन की इंतहा हो गई कि भारत के सिक्योरिटी एहलकार असले के साथ लेस होके पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने पहुंच गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शिराजी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार 3 माह से ज़ायरीन के लिए बंद है। मजार बंद होने से गिरदोनवा के बाजार भी वीरान हैं। दुकानदारों ने मजार को तयशुदा हुकूमती SOPs पर खोलने का मुतालबा कर दिया। शमीर खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मजार कोरोना वायरस की वजह से आम ज़ायरीन के लिए मुसलसल बंद है। दरगाह के गिरदोनवा कारोबार मुकम्मल तौर बंद है। सेवन के शहरियों का रोजगार दरबार कलंदर लाल शहबाज पर आने वाले ज़ायरीन पर होता है। दरबार कलंदर लाल शहबाज बंद होने के बाद दरबार के गिरदोनवा तमाम एशिया के दुकानें मुकम्मल तौर बंद हैं और लॉकडाउन में नरमी के बाद दुकानदारों का रोजगार भी सख्त मुतासर होने लगा है। दरगाह के गिरदोनवाही में फूल, चादरें, लंगर खाने समेत दीगर कारोबार करने वाले 3000 से ज्यादा खानदानों का जरिया मुआश दरबार कलंदर लाल शहबाज पर आने वाले ज़ायरीन पर होते हैं, मगर दरबार मुकम्मल बंद होने के बाद 3000 खानदान फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जो मजार बिल्कुल 3 महीने से मुसलसल बंद है, इसी वजह से हमारा कारोबार इसी दरबार के वजह से होता है, कारोबार के वजह से ही करते हैं। हमारा जो कारोबार है सरकार कलंदर से ही वापस है। 4 लोग आते हैं तो सरकार कलंदर साई के लिए आते हैं, बाकी इधर न कोई कमाने का जरिया है, न कोई मंडी है, न कोई ऐसे कोई मतलब कारखाने वगैरह हैं जहाँ पे हम रोजी करके कमाएं। जब दरबार खुल जाएगा फिर हमारा कारोबार चलेगा। अभी तक दरबार जो है बंद है सारे, वो देखो धूप पर खड़ा है बेचारा परदेसी, सारे ऐसे वापस होते हैं। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भी सिंध सरकार से कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद करते हुए दरगाह लाल शहबाज कलंदर को आम ज़ायरीन के लिए खोलने की अपील की है ताकि गरीब अवाम अपने बच्चों का पेट गुजर सफर कर सके। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शमीर खान ओठो, सच TV न्यूज़, सेवन शरीफ। चारसदा की तहसील शब कदर में ट्रांसपोर्ट अड्डों की मुंतकली के खिलाफ आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन, ताजर बरादरी और शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने धरना दिया और हुकूमत और TMO के खिलाफ नाराबाजी की। नादिर शाह की रिपोर्ट। तहसील शबकदर बाजार में 2 बड़े ट्रांसपोर्ट अड्डों की बाजार से बाहर मुंतकिली के खिलाफ शबकदर बाजार में एहतजाजी कैंप लगाया गया, जिसमें शबकदर मुमन और दीगर इलाकों के अवाम, ट्रांसपोर्ट मालिकान और ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। एहतजाज के बायस दोनों ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद थे, जिससे मुमन, बाजावड़ और दीगर इलाकों के मुसाफिरों को सख्त गर्मी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पेशावर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आए हुए आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर दुरानी ग्रुप के मरकजी सदर शफकत दुरानी, सूबाई ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ यूनियन के सदूर नूर मोहम्मद खान मुमन, साहिब शाह खान, जनरल सेक्रेटरी मुराद खान और दीगर ने कहा कि शबकदर बाजार से ट्रांसपोर्ट अड्डों की मुंतकिली गैर कानूनी है। बाजार से कई किलोमीटर बाहर वीरान जगह पर मुंतकिली से ताजिरों, दुकानदारों, गाड़ी मालिकान और अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना होगा, जो कि अवाम के लिए भी नुकसानदेह है, ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए भी नुकसानदेह है। इसमें दीगर मसले मसाइल भी हैं, लिहाजा मैंने आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर दुरानी ग्रुप और हमारे सदर साहिब शाह यूसुफ जई साहब ने, सूबाई सदर ने, हमने मुतफिका तौर पे ये फैसला किया है कि अगर सूबाई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इस मामले पे एक्शन ना लिया
तो फिर हम मजबूर होंगे। जिस तरह के मैंने अपनी तकरीर में कहा है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि आने वाली 15 जुलाई पे फिर हम वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने धरना देंगे, तादम मर्द भूख हड़ताल होगी। मुजाहिरीन ने शब कदर बाजार में एहतजाजी वाक़ के साथ शाहराहों पर धरना भी दिया और टीमें शब कदर और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। कैमरा टीम के साथ सैयद नादर शाह, सच न्यूज़, तहसील शब कदर। पंजाब भर के स्कूल कोरोना वायरस की वजह से 15 मार्च से बंद हैं। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम को भी मुस्तरद कर दिया। बच्चे घरों में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, देखिए नवीद इकबाल की रिपोर्ट। पंजाब भर में कोरोना वायरस की वजह से 15 मार्च से स्कूल बंद हैं। बच्चे घरों में कैसे वक्त गुजार रहे हैं। बच्चे सारा दिन मुख्तलिफ गेम्स खेलकर लूडो, क्रिकेट, कहानियां, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप पर ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। अक्सर बच्चे घरों में ही क्रिकेट, बागबानी, साइकिलिंग करके वक्त गुजार रहे हैं। छुट्टियों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कभी हम लूडो खेल लेते हैं, कभी हम साइकिलिंग कर लेते हैं, कभी हम स्टडी कर लेते हैं। हम कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं जा रहे। हमारी ये अपील है कि घर से बाहर मत निकलें। बच्चे घरों में ऑनलाइन क्लासेस से जरा भी मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। ये छुट्टियों की वजह से हमारा पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम ये जो शुरू हुआ है, ये इस पर इतनी सही समझ नहीं आती। जब तक टीचर सर हमें लाइव खड़े होकर जब लेक्चर देंगे तो वो और बात है, ये हमें इस पर बिल्कुल समझ नहीं आती। ये नेट की जब अक्सर स्पीड भी बिल्कुल लो हो जाती है और हम अपने गेम करके लूडो वगैरह ये करके हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कोरोना की वजह से हम घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते। बच्चों ने साल 2020 को नुकसान का साल करार दिया और कहा है कि कोरोना की बाइस हमारा तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कोरोना वायरस की वबा से जहां मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा है, वहीं तालीमी निजाम को भी नुकसान पहुंचा है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। बिहारी में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खिदमत से अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों में हिफाजती किट्स तकसीम की गईं। सैयद हसनैन अली की रिपोर्ट। डीपीओ बिहारी शानलाल चौहान का नाकाबंदी पॉइंट्स पर खुद जाकर कोरोना हिफाजती किट्स तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहारी शानलाल चौहान ने कहा है कि जिम्मेवारी है कि हमारे जवान, हमारे अफसरान जो हर जगह पे अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में पब्लिक में मौजूद हैं, तो उनके लिए, उनको बचाने के लिए उनके लिए मास्क और उनको सैनिटाइज़र दिए जाएँ। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में पुलिस के जवानों को इन 2 दिनों में हमने 7000 मास्क जो तकसीम किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खिदमत से अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार की हिफाजत अवलीन तरजीह है। बिहाड़ी पुलिस की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती इंतजाम और एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिला में जिला बिहाड़ी के तमाम नाकाबंदी पॉइंट्स पर फेस मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए जा रहे हैं ताकि पुलिस के जवान इस वबा से महफूज रहकर आवाम की खिदमत को जारी रख सके। कैमरामैन शफीक के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज बिहाड़ी। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। कसूर के रवाई इलाका खडिया का रिहायशी 11 साल का आजान हाथों और पांव की पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। आजाद के इलाज और प्लास्टिक सर्जरी के लिए खतीर रकम दरकारार है। गरीब मेहनतकश बेटे के इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी वसीम। अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, जिंदगी का नाम है दूसरों के काम आना। कसूर के इलाके खुडिया खास के मेहनत कश रहायशी मोहम्मद सद्दीक, जिसका 11 साला बेटा अजान बदकिस्मती से हाथों और पाँव की पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। इस बीमारी की वजह से मासूम अजान के हाथों और पाँव की उंगलियां लकड़ी नुमा सख्त हो गई हैं, मगर घर में गुर्बत है। मासूम अजान का इलाज मुमकिन है, मगर महंगाई के इस दौर में जहाँ 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, वहाँ महंगा इलाज न होने की वजह से मासूम बच्चा हमेशा की मजदूरी की तरफ जा रहा है। मासूम अजान के वालिद का कहना है, मैं अपने बच्चे का काफी देर तो इलाज करवा रहा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जिस इलाज हो रहा है, तो उन्होंने हुण कहा कि CMH में जो इलाज सर्जरी होनी है, तो मैं माड़ा बंदा मैं नहीं करवा सकता। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब अगे कि बराए मेहरबानी मेरी हेल्प करे। सदीक ने अपनी तमाम जमा पूंजी अपने बेटे के इलाज मुआवजे पर खत्म कर दी और अब किराए के मकान में रहते हैं। मासूम अजान की वालदा को अगर कोई फिक्र है तो वो अपने बच्चे के तारीख मुस्तकबिल की फिक्र है। उसका कहना है कि तकरीबन 6 माह हो गए इस कारण से बहुत परेशान है, तो मेरा बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करने
खेल सके, सही हो जाए। हर किस्म की भाग दौड़ के बावजूद इलाज न होना गरीब बच्चे का नसीब कहलाता है। ऐसे हालात में कमसिन अजान अपने इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। उसका कहना है कि खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं सब बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी मेरा इलाज कराएं। 11 साल अजान दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहता है, लेकिन वो बोझी मर्ज का शिकार है। अजान के वालिद का कहना है कि मुखय्यर हजरात आगे बढ़ें और मेरी मदद करें ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच टीवी न्यूज, कसूर। मुल्की अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISPR के मुताबिक CGSC, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अस्करी क़यादत का इस्तकबाल किया। अस्करी क़यादत को इलाकाई सिक्योरिटी LOC मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्की अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISPR के मुताबिक CGSC, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अस्करी क़यादत का इस्तकबाल किया है। मजीद आपको बताते चलें कि अस्करी क़यादत को इलाकाई सिक्योरिटी LOC मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। यहां वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सखर के शहरियों ने SOPs की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी की वजह से मास्क पहनना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। गर्मी हो गई है इतनी ज्यादा सखर में, क्या करें, मास्क कैसे पहनूं बताओ ना। बार बार लाइट जा रही है, लाइट का टाइम ही नहीं है, क्या करूं बताओ। बच्चे गर्मी में बैठे सारे दिन, बार बार लाइट जा रही है और मास्क कैसे पहनूं भाई, सर्द लग गई जा रही है। गर्मी बहुत है, हम मास्क पहन रहे हैं, पसीना इतना निकल रहा, मास्क गीला हो रहा है। यहाँ तक कि मास्क जब गीला हो रहा है, बैक्टीरिया जो है, जरासीम जो है हमारे अंदर वैसे ही जा रहे हैं, तो मास्क पहनने का फायदा नहीं है। बिजली है ना क्या है, गर्मी लगी पड़ी है और मास्क वगैरह जो लगा रहे हैं तो ऊपर से गर्मी की शिद्दत इतनी है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है हमें। और बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग लोगों ने बढ़ा दी है। जो कमर्शियल बंद है तो घरेलू सार्फिन को तो बिजली पूरी दे ना, ये गवर्नमेंट इनको चाहिए। तो बंदे घर में बैठे, तो घर में लाइट होगी तो बैठेंगे ना वो लोग, घर में लाइट ही नहीं होगी तो बंदे तो बाहर ही निकलेंगे। टोबा टेक सिंह में सूरज का पारा हाई हुआ तो नौजवानों ने गर्मी को भगाने के लिए नहरों का रुख कर लिया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह लॉकडाउन के बाद शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचा तो मनचले नौजवानों ने नहरों का रुख कर लिया। शदीद गर्मी और हबस से सताए नौजवान नहर पर नहाते हुए नजर आए। नौजवानों ने गर्मी से बचने के लिए नहरों को पिकनिक पॉइंट बना लिया है। नौजवानों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद है, गर्मी से बचने के लिए दोस्तों के साथ नहाकर एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी का दर्जा हरारत जो है वो 45-40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, इसलिए गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम ट्यूबवेल का पानी जो है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, नहर में नहा रहे हैं। ट्यूबवेल का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने के लिए यहाँ पे खाना छाना भी देखे हैं साथ। नौजवानों ने दोस्तों से मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया और ट्यूबवेल के ठंडे ठार पानी से नहाकर गर्मी को भगाया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही फैसलाबाद की तहसील समंदरी के शहरी ठंडी सरदाई से लुत्फानंदोज होने लगे। शहबाज बद्दी की रिपोर्ट। समंदरी में भी गर्मियों का मौसम शुरू होते ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। खासतौर पर शहरी सरदाई से लुत्फानंदोज होते हुए नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि सरदाई पीने से ठंडक का एहसास होता है। शहरी मजेदार और ठंडी सरदाई पीने दूर दराज से आते हैं। शहरियों का कहना है सरदाई न सिर्फ सेहत अफजा मशरूब है बल्कि गर्मी की शिद्दत कम करने में भी खासा मुफीद साबित होता है। गर्मियों की सौगात सरदाई बनाने में बादाम, छोटी इलायची, काली मिर्च, खसखस और रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी हवाले से दुकानदारों का कहना था गर्मियों के मौसम में लगाए गए सरदाई के ये स्टॉल्स न सिर्फ शहरियों के लिए लुत्फानंदोज होने का बहाना है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गन्ने के शरबत की मांग बढ़ गई। देखिए जहांज़ेब अली की रिपोर्ट। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो जाता है। हैदराबाद शहर भर में गन्ने की शरबत में इजाफा हो गया है। गन्ने की मशरूबात को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मियों के मौसम में हम गन्ने के शरबत का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि गन्ने का शरबत से ही हमें कई विटामिन सेहत के लिए मिलते हैं। गन्ने का शरबत पी लूं
क्योंकि गर्मी का सीजन काफ़ी पीक के ऊपर है और ये मैदे और जिगर के लिए काफ़ी सेहतबख्श है। गन्ने के पीने से ये फायदा है, जिगर में जितनी गर्माश है वो खत्म हो जाती है, जो हमारे विटामिन सी और दूसरे मिनरल जो है उसको बूस्ट अप करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, जो हमारी मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के काम आता है। शहरियों का मजीद कहना था कि गन्ने की मशरूबात पीने से जिगर की गर्मी, यरकान और थकावट व प्यास को दूर करता है। गन्ने के शरबत बनाने वाले कारीगर का कहना था कि गन्ने से तैयार मशरूबात को मजीद टेस्ट के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पीने वालों को मजीद अच्छा टेस्ट महसूस होता है। इसके फायदे ये, इसकी तासीर ठंडी है, गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद है और खास तौर जमीन से उगता है और खास तौर पे अगर कोई पीलिया वाला होता है उसके लिए समझो दवाई यही है। गर्मियों के मौसम में लोग ठंडे मशरूबात बिलखुसूस गन्ने के शरबत को ज्यादा तरजीह देते हैं, खुद भी पीते हैं और अपने घर वालों के लिए भी पार्सल ले जाते हैं। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहां अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। दरिया चनाब के किनारे पाया जाने वाला जायकेदार फल लीची को चिन्योट के किसान बहुत मेहनत और शौक से तैयार करते हैं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। सूरत की असीन वादियों में पाया जाने वाला ज़ैकेदार फल लीची, जो ऊपर से रंग सुर्ख और अंदर से बिल्कुल सफेद, दरिया चनाब के किनारे आबाद शहर चिन्योट के हरे भरे खेतों में भी अब पाया जाने लगा है और इसी वजह से चिन्योट के किसान लीची को बहुत मेहनत और शौक से तैयार करते दिखाई देते हैं। किसान कहते हैं, हमने इसको 15 साल कबल लगाया था, जो अब एक मुकम्मल फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। हम इसकी हर मौसम में बहुत शौक से देखभाल करते हैं। लीची की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा लगाकर इसकी अच्छी देखभाल की जाए और ये दीगर किसानों को भी बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्योट। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।